ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. میاں حبیب صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا محمد ارشد صاحب ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی ہیں PMLN. ان سے پنجاب کی صورتحال جانیں گے, پنجاب گورنمنٹ کا آفیشیل ورژن بھی ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں فلڈ کے حوالے سے. تینوں مہمانوں کو ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے تو رانا صاحب سے ہی جان لیتے ہیں کہ حکومتی اس وقت اسٹانس کیا ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھے پچھلے دنوں میں سن رہی تھی عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ ہماری پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں, وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری پوری تیاری ہے فلڈ سے نمٹنے کی. پھر ہم نے آن گراؤنڈ دیکھا تیاری کس طرح سے تھی. مانا کہ اس وقت کلائمیٹ چینج ہے لیکن تیاریاں ہمیں نظر نہیں آئی سر آن گراؤنڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کا مشکور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ نیازی صاحب اور میاں حبیب صاحب بڑے سینئر ہیں میرے تھے, میں تو ان سے سیکھتا ہوں. لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جی جی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے آمین آسمانی آفات سے. آمین. فلڈ جو ہے یہ کوئی ایک نیک شگون نہیں ہے, یہ بالکل آیا پریشانی ہوئی ہے. اور میں پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیف منسٹر پنجاب آج بھی ملتان میں تھے, جی جی وہ ایک خاتون چیف منسٹر ہونے کے ناطے دن رات اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. وہ جنگ گئے ہیں, وہ ناروال گئے ہیں, وہ وزیر آباد گئے ہیں, وہ حافظ آباد گئے ہیں, وہ میرے ضلع ننکانہ میں گئے ہیں, اور وہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور چیئرمین NDA میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن جب پانی جو ہے وہ 1988 کے بعد اب آیا اور جب اتنا عرصہ گزرا ہے تو نو ڈاؤٹ ہم دیہاتی لوگ ہیں, دریائے راوی کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافی عرصہ سے دیکھتے رہے کہ سیلاب نہیں آ رہا, اور وہ آبادیاں بھی بنی, وہاں پر کاشتکاری بھی ہوئی, اور کئی شاید ہاؤس کلونیاں بھی بن گئی مختلف اوقات میں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری منسٹر نے بات کی کہ ہماری کوشش ہے, ہم نے تمام DC حضرات, کمشنرز اور اسی طرح سیکرٹری اور چیف سیکرٹری صاحب ایمرجنسی لے. رانا صاحب کی آڈیو, رانا صاحب آپ کی آڈیو نہیں پہنچ رہی ہے میرے تک. میں رانا صاحب کی طرف آتی ہوں, میں اپنی ٹیم سے کہوں گی ذرا اس ایشو کو فکس کریں. رانا صاحب کی آواز آتے آتے رک گئی ہے. نیازی صاحب سے جان لیتے ہیں. نیازی صاحب بار بار ہمیں ایڈز ملتی ہیں ورلڈ بینک سے, UNDP سے, جائکا جاپان سے, USAID سے, لیکن یہ ادارہ فیڈرل فائنانس کمیشن اس کے بعد بھی صرف کاغذ پر ہی چلتا ہے. آن گراؤنڈ اگر چلتا ہوتا تو آج سارا کچھ بہتر نہ گیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیضہ. اور میں اپنے دوستوں کو بھی اپنے دل کے تھا گرہیں سلام عرض کرتا ہوں. میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جیسے 1977 میں فلڈ واٹر ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی, یقیناً وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنائی گئی تھی, تو اس وقت چونکہ NDMA کا کوئی رول نہیں تھا, PDMA کا کوئی رول نہیں تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, سیلاب سے بچنا چاہتے ہیں, دیکھو اس میں کوئی شک نہیں, بارش جو ہے نا یہ قدرتی امر ہے. لیکن اگر ویسٹرن میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ مس مینجمنٹ ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے, چاہے موجودہ حکومت یا پہلے والی حکومتیں, انہوں نے اس کے لیے کام نہیں کیا, ورک نہیں کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ 1970 والا جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, جو فلڈ واٹر اتھارٹی بنی تھی, اس کو امینڈ کریں, اس میں ہر ایک PDMA NDMA کا رول جو ہے وہ لائیں, اور اس میں یہ ان کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے ہر سال آپ بجٹ رکھیں. مجھے نہیں لگتا 1970 کے بعد اس کے لیے کوئی بجٹ رکھا گیا ہوگا. اگر بجٹ رکھا جاتا تو اس کے لیے کام ہوتا, تو بجٹ کہاں جاتا ہے اس کی بھی میرا خیال میں ہونی چاہیے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو دیکھیں اگر آپ واقعی ہی کچھ کام کرنا چاہتے ابھی سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے آپ ڈیم بنائیں. میں کہتا ہوں کہ ستلج خاص کر بھاول نگر کے ایریا میں جہاں سے وہ گزر رہا ہے وہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے ریزروائرز واٹر بنا دیں, تاکہ جب بھی یہ فلڈ آئے, جیسے آپ کہہ رہی تھیں ابھی اپنے انٹرو میں
کوئی دوست کہہ رہا تھا شاید کہ پانی جو ہے نیکسٹ ایئر اس سے بھی 20% زیادہ آئے گا, نیکسٹ ایئر 22% 22% اس سے زیادہ آئے گا. تو آپ ابھی سے وہاں پہ جو ہے واٹر ریزروائر بنا لیں اور اس سے آپ نہریں بھی نکال سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر جو آپ کا ڈیزرٹ ہے جس کو آپ سیراب کرنا چاہتے ہیں, جس پہ ڈفرینسز ہیں کہ 6 نہریں نکالی جا رہی تھیں, وہ ایشو بھی نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ترجیحات نہیں ہیں. اگر آپ کی ترجیحات ہوں کہ آپ نے کام کرنا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پی ڈی ایم میں ہے یا این ڈی ایم میں ہے, وہ تو لوگوں کو ریسکیو کر رہا ہے, ریلیف دے رہا ہے, مگر کچھ لوگ جو ہے نا, یہ حکومت سے میں کہوں گا معذرت کے ساتھ, آپ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے آپ وی آئی پی کو ادھر وزٹ نہیں کرنا چاہیے, چونکہ ان کے کام میں اور ریلیف کام میں, ریسکیو کام میں جو ہے خلل پڑتا ہے. اور ابھی جو مجھے کچھ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مثلا الخدمت والے یا کوئی دوسرے جو چیریٹی ادارے ہیں, وہ وہاں پہ جب کھانا لے کے جاتے ہیں یا دوسری اشیاء لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ سی ایم کی تصویر لگا کہیں گے پھر ہم جو ہے نا یہ آپ سے لیں گے اور سیلاب زدگان تک یہ کون پہنچائیں کہتا گے. ہے وہاں پہ؟ یہ بہت ساری, یہ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بات چل رہی تھی کہ حکومتی جو کرندے ہیں جو وہاں پہ ڈپلائی کیے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے سی ایم کی تصویر والا تصویر لگائیں, تصویر لے کے آئیں, پھر جو آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں سامان کو یا خوراک کو. سی ایم کی تصویر لازمی تو مجھے دیکھیں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. اگر آپ صرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ذاتی تشہیر چاہتے ہیں, آپ کو جو فلڈ کے جو وکٹمائز ہیں ان سے کوئی آپ کو ہمدردی نہیں ہے, یہ کہاں کا اصول ہے, کہاں کا قانون ہے؟ لوگ پہلے بھی فلڈ آتے رہے ہیں, مختلف تنظیمیں این جی اوز کام کرتی ہیں, یعنی وہ جب جاتی ہے اس وقت کی حکومت نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ آپ جی وہ موجودہ جو حکمران ہے یا سی ایم ہے اس کی تصویر والا وہ تصویر لگائیں یا اس پہ چھاپا لگائیں تو پھر آپ کے دیں گے, ادروائز ہم آپ کو نہیں دے دیں گے. یہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ساری کمپلینٹس جو ہے نا وہ آ رہی ہیں, ذرا آپ اس کو گراس روٹ لیول چیک کریں. مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنے قسمیں اٹھا کر حلف اٹھا کر رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ تو یہ رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ناظرین, رانا صاحب کا جو آڈیو ایشو ہے اس کو فکس کرنے کی میری ٹیم کوشش کر رہی ہے. میاں حبیب صاحب سے جان لیتے ہیں. میاں حبیب صاحب, آپ کے نالج میں ہے یہ جو نیازی صاحب بات کر رہے ہیں؟ خیر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی میں بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے جن کے اوپر کبھی بڑے میاں صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی, کبھی جو ہے مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی. اسپیشلی محرم کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا جو فلیکسز تھی, جو بینرز تھے, ان پہ بھی مریم صاحبہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. یہ ضروری ہے اگر واقعی ایسا ہے؟ رانا صاحب سے تو ویسے ہم ان کا بھی ورژن جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ٹیک کیا ہے, ان کا پوائنٹ کیا ہے اس پہ, لیکن کیا واقعی ضروری ہے کہ جس پہ سی ایم کی تصویر ہو وہی امدادی کیمپ میں امداد پہنچے گی اور جس پہ سی ایم کی تصویر نہیں ہے وہ نہیں جائے گی آگے؟ میاں صاحب. جی آپ میری آواز سن پا رہی؟ جی اب آپ کی آواز آئی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر کام ہر جگہ پہ سوٹ کرے. دیکھیں تشہیر کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے اور مؤثر تشہیر جو ہے وہ پر وقت اور پرفیکٹ ہونی چاہیے. دیکھیں اب مرگ والے گھر میں آپ جا کے تشہیر نہیں کر سکتے, وہاں آپ کو توقی کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ سیلاب زدگان کو جو امداد دے رہے ہیں, جو وہاں جا کے ان کی مزاج پرسی کر رہے ہیں, وہاں آپ جا کے بینر لگائیں تو وہ نہیں کرتا. اور لیکن یہ شریف فیملی کی ایک کمزوری ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے ذاتی تشہیر کو مقدم رکھا ہے. میاں نواز شریف ہو, میاں شہباز شریف صاحب ہوں, حمزہ صاحب ہوں, مریم صاحبہ ہوں, وہ یہ ایک ان کا نا خاندانی اسٹائل ہے کہ وہ ہر بات میں جو ہے وہ اپنی تشہیر ضروری سمجھتے ہیں. اور اب میاں نواز شریف کے ابتدائی دور تک تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ صرف بینر لگا کر ایم پی ایم این اے بن گئے تھے. میاں صاحب ان سے خوش ہوتے تھے کہ اچھا یہ ایک ہوتا تھا شہباز بینروں والا مشہور ہو گیا تھا, حاجی شہباز احمد ہوتے تھے وہ.
तो खैर ये अपनी जगह पे मामला है, इस पे हमें ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर है। मियां साहब, मैं माजरत के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं पहले चाह रही हूँ कि राना साहब से जान लें कि इसमें कितनी हकीकत है, फिर मैं आपका इस पे कंप्लीट पॉइंट लेती हूँ। राना साहब, अभी आपने होपफुली सुनी होगी जो है रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब की बात। वो कह रहे हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से या दूसरे जो इमदादी उनकी जानिब से जो इमदाद दी जा रही है, उसमें जो इमदादी कैंप्स तक इमदाद पहुंचती है, उसमें आगे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस पे सीएम पंजाब की या सीएम साहिबा की तस्वीर होनी चाहिए। जिस पे तस्वीर है सिर्फ वही इमदाद आगे जाएगी, जिस पे तस्वीर नहीं है वो इमदाद आगे नहीं जाएगी। ये हकीकत है सर? ऐसा किया जा रहा है आपकी जानिब से? आपको मेरी आवाज आ रही थी? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आपकी आवाज आई है। आप आ रही। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैंने पहले कहा कि नियाज़ी साहब और मियां साहब से मैं सीखता हूँ, लेकिन मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर को 38 साल हो गए हैं ये कहानियां सुनते हुए कि फलां में नुक्स है, फलां जो है वो हिलता है, फलां जो बोलता है, फलां जो खाता है, मुझे नहीं पसंद। यार सब कुछ छोड़ें, आप लेके जाएं, मुझे आप फरमा दें कि आप खुराक लेके जाना चाहते हैं, आप जो सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई तस्वीर की जरूरत नहीं। जब मैंने कुछ नहीं करना तो मुझे बातें करना तो आती हैं, वो तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये नहीं कहना कि एक चीफ मिनिस्टर अवाम के साथ है, वो जंग में घूम फिर रही है, वो खातून होने के नाते वो खवातीन को मिल रही है, वो बच्चों को मिल रही है, वो बुजुर्गों को मिल रही है। भाई अगर हम मिल रहे हैं, चलो अगर आपको चीज नहीं पसंद तो अब मैं मदद कर लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ। नहीं राणा साहब, मैं एक्चुअल पॉइंट ये जानना चाह रही थी कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि सीएम साहब की तस्वीर जिस पे नहीं है वो इमदाद वापस भेजी जा रही है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं होता, नहीं होगा। सुबह ट्रक भेजे, मुल्तान भेजे, मेरे जिले नरकाने में भेजे, हाफिजाबाद भेजे, वो जिस एनजीओ को भी हों। देखे ना यहां क्या कुछ नहीं होता रहा। देखे ना, मुझे तो इसलिए कुछ सबक सिखाए कि 2018 के बाद 10 अप्रैल 2022 तक मरकज में क्या होता रहा, फिर 4.5 साल सूबे में क्या होता रहा, सब कुछ होता रहा। तस्वीरें लगती रही, हमने बर्दाश्त की, हमने सुना, हमने देखा। लेकिन आज इशू ये है, आज जो डूब रहे हैं, आज वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो दरमियाए स्वात में डूबे पसरूर की फैमिली के 18 अफराद हों, मुझे दुख है। वो बनीर में अल्लाह को प्यारे हो जाएं 450-500 के करीब खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उनका भी दुख है। मुझे जो मल्तान, जो डेरा गाजी खान, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान, जो कराची है, बलूचिस्तान है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये सब कुछ करें। पीटीआई वाले अपने कायद की तस्वीर लगाकर बांटे, कौन रोक रहा है? कोई रोक सकता किसी को? अगर कहीं रोके तो ये मुझे वीडियो भेजे, अगर हमारा एमपी एमएनए अनवाल होगा तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करूंगा, मैं मदई बनूंगा। लेकिन ये मुनासिब नहीं कि हम इल्जामात ही लगाते रहे, हम किसी वक्त किसी को माफी ना दें, ये मुनासिब नहीं। आपके ख्याल में ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्जाम है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये हकीकत, आप बताएं ना ये कैसे पॉसिबल है? सर वैसे रमजान पैकेज पे तो तस्वीर थी ना जी, इसलिए शायद जब रमजान पैकेज आएगा तो रमजान पैकेज की बात करेंगे, बिल्कुल है। और वो अगर पंजाब में है तो उसी तरह सिंध में जो वहां के हुक्मरान है वो कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हुक्मरान है वो कर रहे हैं, और जो पहले बुजदार सरकार थी उस वक्त तस्वीरें लगती थी, सब कुछ होता था। ठीक है, अब तस्वीर पे हम अड़ जाएं। मैं कहता हूं कि चलो अगर एक चीज पसंद नहीं तो वो एक अलग इशू है, लेकिन काम करने से शिराजी साहब कोई रोक नहीं सकता, ना रोकेंगे। मैं करता हूं, रोकना चाहिए भी नहीं राना साहब। अभी जितनी इमदाद पहुंचे, रोका भी नहीं, जितनी इमदाद पहुंचे उतनी नहीं। आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, हर आदमी के पास तो मोबाइल है और फिर वीडियो बन रही है। जो हमारा साथी वर्कर जो है, जो खुदा ना खास्ता सेंटी वर्कर है, उसके पास भी वीडियो वाला कैमरा होता है। हर आदमी तो वीडियो बनाता है। अगर कोई रोकेगा कि ये खुराक इस्तेमाल नहीं आप दे सकते, तो कोई चीज रोक सकती है?
आपका मीडिया हर जगह पे मौजूद है। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया राणा साहब। जी जी राणा साहब आपको पॉइंट आ गया, थोड़ा मार्जिन दीजिएगा, मैं जरा इस इशू को क्लियर कर लूं, फिर पॉलिटिकल इशू की तरफ आते हैं। नहीं साहब, वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। देखें फायजा, मैं राना साहब मेरे भाई हैं, जब मस्जिदों में सीएम की तस्वीर लग रही है वहाँ पे एक्शन लिया जाता है, कमिश्नर की बात पुरस होती है, डीसी की होती है, ये कैसे इस तरह तो नहीं ना हो सकता। ये मैं अपने पास नहीं कर, ये तो हकीकत है सारी चीज़ें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो कंपनियां एनडीएम है या पीडीएम में जो रेस्क्यू कर रहे हैं, जो रिलीफ कैंप बने हुए हैं, वहाँ ये प्रोटोकॉल की वजह से उनके काम में हर जाता है, उसमें एक रुकावट आ जाती है। लिहाजा लोगों को काम करने दें, आपने जो कुछ भी करना है आप बेशक एक जो जैसे मीटिंग होती है सीएम सब करें मीटिंग, चाहे ऑनलाइन कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, वीडियो लिंक कर लें, मगर इस तरह उनके जाने से सारा वो शेक हो जाता है, जो प्रोग्राम, जो रिलीफ कैंप होते, जो रेस्क्यू किया जाता है। तो ये राणा साहब बेशक इसको डिनाई करें, ये वो उनका अपनी एक ओपिनियन, मेरी ओपिनियन ये है कि मस्जिदों में भी मरियम बीबी की तस्वीरें जो लगी हैं जिसमें उन्होंने खुद भी एक्शन लिया है, इससे आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। शिराजी साहबा, अगर मस्जिद में तस्वीर का तुक नहीं बनता, अगर कोई वकूआ हुआ है किसी जगह पे तो चीफ मिनिस्टर ने खुद एक्शन लिया है। हमें क्या जरूरत है मस्जिद में तस्वीर लगाने की, खुदा ना खास्ता मस्जिद में जेब नहीं देता, और जिसने लगाई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर है या सियासी है या कोई ब्यूरोक्रेट है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जिसने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को डैमेज करने की साजिश हो, जिसने भी की हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेट करवा लेना कहां पे ये वाकया हुआ है, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवा लें, देख लें। मैं करना चाहता हूं कि जो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, जिनके घर गिर गए हैं, हमें सब मिलकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राणा साहब, आपकी जानिब आती हूँ। मियां साहब, जरा अब हम अपनी पॉलिटिक्स की तरफ भी आ जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ जरा एक्टिव हो गई है, इस्तीफे भी दे रही है। ये गंडापुर साहब ने सदारती निज़ाम की बात करती है, कल वो कहते हैं सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये उन्होंने खान साहब को भी बीच में कोट कर दिया कि इमरान खान साहब भी सदारती निज़ाम में हुकूमत के हामी थे। ये सदारती निज़ाम कहाँ से आ गया सर? सारे फ्लड कर रहे हैं, गंडापुर साहब ने नई लाइन पकड़ ली है सदारती निज़ाम की। देखिए, बात यह है सियासत जो होती है ना, उसमें टाइमिंग बड़ी अहम होती है। इस वक्त कालापाल डैम बड़ा डिस्कस हो रहा था, और उसी तिराहे में जो है ना उन्होंने एक और गोल कर दिया कि सदारती निज़ाम, चूँकि शुनीद ये है या तासरबाज जगहों से ये मिल रहा है कि कहीं से सदारती निज़ाम की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने कहा कि मैं भी अपना हिस्सा डाल लूँ। मियां साहब, वहाँ से जस्टिफिकेशन भी आ गई थी कि ऐसे कोई प्लान नहीं है। आ रही है आपके ना, ये आवाज गूंज रही है, मुझे वापस आ रही है आपकी। जी, उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मेरा पॉइंट आपने सुन लिया कि वहाँ से जस्टिफिकेशन भी आ गई थी कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, हाँ, प्लान तो नहीं होता, बात चीजें सिर्फ डिस्कस करने के लिए होती हैं, पब्लिक में ओपिनियन चेक करने के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पर आप सूबों की जो बात की जा रही है, इससे बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और बाल लोगों को जो है वो असाइनमेंट दी गई है कि आपने उसमें रायामा हमवार करनी है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। इमरान खान ने भी अगर जो बात की थी सदारती निज़ाम की, और आप अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ऐसे ही बात कर दी? उन्होंने किसी को खुश करने के लिए की होगी? सर, कहवाई गई ना, जहां जिन्होंने गंडापुर साहब से ये मनवाया कि वो कालाबाग डैम की बात करें, तो फिर वो जाहिर सी बात है ये बात भी तो फिर इसी तरह से सामने आई ना। हाँ, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं से कोई असाइनमेंट उन्हें मिली है, और या वो उन्होंने किसी को खुश करने के लिए, अपना रास्ता हमवार करने के लिए, या राब्ते मौसर करने के लिए जो है उन्होंने कहा होगा कि चले मैं कोई ऐसी बात छोड़ता हूँ जिस पर जो है मुझे बुलाया जाएगा या मुझसे रास्ता किया जाएगा। सियासतदान जो होते हैं ना, वो कैसे कुछ है करते कुछ है। वो अगर कोई बात करते हैं तो उसके कई एस्पेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है और अब वो कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पंजाब जो है मुस्लिम लीग नून, बल्कि उज़मा बुखारी साहबा ने खैर मकदम भी किया, तो इस पर तीन पार्टी नाराज होगी। तो जो एक सियासी तौर पर
वो करना चाहिए, वो तो कर लिया ना। वो अब इस पर कालाबाग डैम पर, नहरों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर ये मामला थोड़ा आगे बढ़ता है तो इस पर इख्तिलाफात भी पैदा हो सकते हैं दोनों सियासी जमातों में। तो यही उनका नुक्ता नजर था आलिम गंडापुर का। ठीक हो गया न्याजी साहब, ये गंडापुर साहब एकदम नहीं उन्होंने टोन पकड़ लिया। खैर मुझे याद, मैंने सुना है मुशर्रफ साहब दो चीज़ें चाहते थे, एक कालाबाग डैम की वो बात करते थे, दूसरा वो सदारती निज़ाम की बात करते थे, सदारती निज़ाम हो। उन्हें तो खैर ये नहीं मिला सदारती निज़ाम। पता नहीं ये किसकी बात कर रहे हैं गंडापुर साहब के सदारती निज़ाम होना चाहिए। सदर तो हमारे पास यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। पता नहीं अब सदारती निज़ाम में ये किसको फिट करना चाहते हैं, किसकी टोन में बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये पहले कालाबाग डैम फिर सदारती निज़ाम, ये कहाँ से आई हैं ये बातें गंडापुर साहब के पास? देखा, मैं मियाँ साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा कि उसकी जो टाइमिंग जो है ना वो आपके सामने है, और इसमें तो कोई तरमीम की गूंज भी है, सदारती निज़ाम की भी बात हो गई है। देखें ये देखें कि पॉलिटिकल एक थिंकिंग जो है ना वो बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात जो है ना इस पे वो डायलॉग होते रहते हैं, इस पे डिबेट होनी चाहिए कि सदारती निज़ाम क्या। अगर तो आपका पार्लिमानी निज़ाम जो है वो नाकाम हो चुका है और यकीनन नाकाम हो चुका है, तो फिर आपको इसके मुतबादिल निज़ाम के बारे सोचना चाहिए। जब ये एक कठपुतली बन जाए, यानी पार्लिमानी निज़ाम जहाँ पे डिफंक्शन हो जाए अदारे जिन्होंने लोगों को इंसाफ देना है या लोगों के लिए जो फलाह बहबूद के काम करने हैं या आइन साजी करनी है, कानून साजी करनी है, लोगों को शरकत इक़्तिदार है जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शामिल करना था, अगर वो नाकाम हो गया तो मेरा ख्याल में सदारती जो निज़ाम उसके बारे सोचना कोई ऐसी बात तो नहीं। बुरी पे बात कर लेते हैं न्याजी साहब। एक तो सदारती निज़ाम है ना अमेरिका का कि वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट होता है, कांग्रेस रहता है, वो सब कुछ है। फिर दूसरा सदारती निज़ाम एक फ्रांस के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो निज़ाम है। वहाँ पे एक सदर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, फिर उसी तरह से दो हाउसेस भी होते हैं। मैं अमेरिकन वाले प्रेसिडेंशियल मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा। आपके नज़दीक पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन सा निज़ाम रहेगा, सदारत का या खाली सदर हो या प्राइम मिनिस्टर भी उसके साथ? देखें जी, मेरे ख्याल में मैं अमेरिकन जो निज़ाम है ना जिसको मैं कहता हूँ प्रेसिडेंशियल पार्लिमानी सिस्टम है, मैं उसको जो है ना मैं उसका हामी हूँ। यानी प्राइम मिनिस्टर ना हो, सिर्फ वो हो। और मैं कहता हूँ उसको जो अमेरिका के आइन में है ना उसमें मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान ऐसे लोग होने चाहिए जो इलेक्टेड लोग जो कैबिनेट में नहीं होने चाहिए, नॉन इलेक्टेड टेक्निकल लोग होने चाहिए और वो आंसरेबल हों पार्लियामेंट को। और जब एमएनए को जो आप उसको में कैबिनेट में लेते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी बन जाती है, फिर उनके जो है ना फिर वो नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो निज़ाम है प्रेसिडेंशियल कम पार्लिमानी सिस्टम जो है इट इज़ बेटर। राना साहब, सर मैं आपसे ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात जानना चाह रही थी। डेफिनेटली आपकी नॉलेज में है ये चीज़, मुझे पता है आपकी नॉलेज में होगी, आप शेयर करें। मुझे पता है इसका हाँ या ना में ही आपने जवाब देना है, डिटेल में तो शायद आप ना जाएं। मरी में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है सर। बड़े मियाँ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, मरियम बीवी भी थी और दो और भी बहुत अहम शख्सियात थी। वहाँ सुना है तसलसल का फैसला हो गया है, हो गया सर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आपने ये दो प्रेसिडेंट निजाम की बात कर रहे हैं, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे फिर प्रेसिडेंट की तरफ जाते। नहीं देखा, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है, फ्लड पे बात हुई है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं जो आपका तसलसल का कोई फैसला नहीं हुआ वहाँ पे। देखिए तसलसल का देखो ये अल्लाह ताला की जात को पता होता है और उसके बाद हालात होते हैं। तरमीम तो आप लेके सर, तरमीम तो गवर्नमेंट ने लानी है ना, 27वीं तरमीम, तो उसमें जो आईनी मुद्दत फिक्स करेंगे उसके हिसाब से तो तसलसल हो जाएगा। और अगर कोई तरमीम आनी है तो अगर गवर्नमेंट ने हमने लानी है तो फिर हम अपनी इत्तेहादियों से डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि इस वक्त और मौके को अगर कौम को किस चीज की जरूरत है तो वो ज़ाहिर है। यानी कि आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। शॉर्टली जरा सदारती निजाम का बता दें, लास्ट 10 सेकंड्स हैं। सदारती निजाम की कोई है ऐसी बात? अयूब खान साहब का दौर रहा, मुशर्रफ साहब का दौर रहा, जनरल ज़िया साहब का दौर रहा, वो तारीख गवाह है सबके पास। ठीक है, ये मुल्क जमहूरियत की बुनियाद पे बना है, हम जमहूरी लोग हैं। जमहूरी लोग हैं आप, जमहूरी निजाम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। माजरत के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा। राना मोहम्मद अरशद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियां हबीब साहब, रफीला खान न्याजी साहब, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।